Hello students and learners, welcome to Brainbox Tutorials 11 and 12. We were doing class 12 English chapter Atithi, Guest, a story written by Ravindranath Tagore, and this story is the first story in the book Prism for class 12. We have done first part of the story. Let us continue from where we have stopped it. So the last part which we did was that little girl Charu Shashi, daughter of Motilal Babu, was full of envy and jealousy for Tarapada because everybody used to like him and she did not like this, that her parents loved somebody else more than her or equal to her. Now, she was her parents' only child, sole claimant on their affection. So this was the problem. Sole claimant मतलब अकेली हकदार थी वो उनके प्यार की. So कोई और उनका प्यार कैसे ले सकता है? कोई और को उसके मम्मी पापा कैसे प्यार कर सकते हैं? There was no end to her willfulness and obstinacy. Willfulness and obstinacy meaning obstinacy is stubbornness and willfulness is also somebody who wants to have things done exactly how she or he wants to do it. So that is stubbornness or some kind of a determination but in a negative sense. So there was no end to her. She was that kind of a girl. She had her own opinions about food, clothes and hairstyles, but there was no consistency in them. उसको कभी ये फूड चाहिए तो ये ही चाहिए, ये कपड़े पहने तो ये ही कपड़े पहने, ऐसा ही हेयर स्टाइल चाहिए, कोई फिक्स भी नहीं था. आज मेरा मन ये है तो मुझे ये ही चाहिए. तो वैसे जिद्दी तैसे थी लड़की. Whenever she was invited out, her mother was terrified that she would make impossible demands over dress. If her hairstyle displeased her, to do and redo it made no difference and merely led to a tantrum. कभी भी उसको कोई बाहर से बुलावा आता, इनविटेशन आता, उसकी मम्मी डर जाती कि अब उसके चालू हो जाएगी, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसा हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे बार बार चेंज करवाएगी हेयर स्टाइल. ओके, सो इतने टैंट्रम्स थे उस लड़की के. शी वॉज लाइक दिस विथ एवरीथिंग, हर चीज के साथ ऐसी ही थी. बट इफ शी वॉज इन अ गुड मूड शी वॉज एमिनेबल टू एनीथिंग. एमिनेबल मीन्स इजीली कंट्रोल्ड, दैट मीन्स कंट्रोलेबल. कभी अच्छे मूड में होती थी तो किसी के भी वश में मतलब आ जाती थी, जो बोलेंगे वो मान जाती थी. एंड वुड शो एक्सेसिव लव फॉर हर मदर, हगिंग हर, किसिंग हर, लाफिंग इन एन अनबैलेंस्ड वे. द गर्ल वॉज अ पजल. दैट इज वाई द ऑथर इज कॉलिंग हर अ पजल. कभी तो बहुत खुश, बहुत प्यार, एकदम उमड़ करके देने वाली प्यार, ऐसे मम्मी पापा से प्यार करती है, और कभी गुस्सा हो जाती तो इतनी इरिटेट करती सबको, इतना टेंट्रम कि लोग परेशान हो जाते. But now her volatile feelings began to concentrate in fierce animosity towards Tarapada, and she caused exceptional trouble to her parents. Animosity means hostility, यानी किसी से बैर, शत्रुता, वैसा उसको फीलिंग आने लग गया था तारापदा के लिए. रीजन वॉज कि उसके पेरेंट्स उसको ज्यादा प्यार करने लगे थे, तो वो अपने पेरेंट्स को भी इतना ट्रबल देने लग गई थी. At meals, she scowled and pushed her plate away. She would complain about the cooking, slap the maid and object to everything. ठीक है, प्लेट फेंक देगी, खाना नहीं खाएगी, मेड को ही थप्पड़ लगा देगी, इस तरीके से करती थी वो टेंट्रम. The more that Tarapada's accomplishments impressed her and others, the more angry she became. It was not that Tarapada's accomplishment did not impress her. वो उसे impress भी होती थी कि क्या लड़का है, इसको सब कुछ आता है, impress भी होती थी, पर साथ ही साथ जलन भी होती थी उसको. तो जितना ज्यादा वो accomplish करता है, जितना ज्यादा नई नई चीजें दिखाता है लोगों को, वो उसको accomplishment से पसंद भी करती, impress भी हो जाती, लेकिन मन ही मन impress थी, पर उसको जलन भी बहुत होती थी कि लोग उसको इतना प्यार क्यों करते, एंग्री हो जाती थी. शी वुड नॉट एडमिट दैट ही हैड एनी वर्च्यूज एट ऑल. वो मानती ही नहीं थी कि कुछ नहीं है, लड़का ऐसे ही है. अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ देम मेड हर इवन मोर क्रिटिकल. जब बाकी सब कोई मानते नहीं थे तो उसको और गुस्सा आ जाता था. On the night that Tarapada sang about Kush and love, Annapurna thought, wild animals can be tamed by music, so perhaps my daughter will soften. जिस दिन वो लव कुश का वो गाना गाया था, पंचाली सॉन्ग, तो उसकी माँ अन्नपूर्णा, चारुशेष की माँ ने ऐसा सोचा कि वाइल्ड एनिमल्स को भी शांत कराया जा सकता है म्यूजिक से. सो क्या पता मेरी डॉटर को भी कुछ फर्क पड़े, जब ये गाए तो इसके गाने से शायद फर्क पड़ जाए. मेरी बेटी जो चंचल है, बहुत ज्यादा बदमाश है, गुस्सा होती है, वो भी शायद ठीक हो जाए. How did you like it, Charu? She asked. She gave no answer, merely tossed her head, implying I didn't like it at all and shall never like it. She didn't say anything, पर उसके मुंह को झटकाने का, मुंह को हटाने का तरीका जो था वो ऐसा ही था कि जैसे वो कहना चाहती हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और नहीं कभी पसंद आएगा इसका गाना.
Realizing that Charu was jealous, her mother stopped showing affection for Tarapada in front of her. देखो पता चल जाता है ना, मम्मी पापा को पता भी चल जाता है कि बच्चे क्यों गुस्सा है, क्या कारण से गुस्सा है। तो बिना बोले ही उसकी माँ को समझ में आ गया कि ये इसलिए गुस्सा है कि मैं तारापदा को इतना प्यार करती हूँ। तो ठीक है, तारापदा के लिए कोई भी अफेक्शन वो नहीं दिखाती थी चारू के सामने। आफ्टर डार्क, when Charu had gone to bed after eating early, Annapurna would sit by the door of the cabin, and Motilal Babu and Tarapada would sit outside. And at Annapurna's request, Tarapada would sing. तो जब चारू सो जाती खाना खा के रात को, उसके बाद अन्नपूर्णा और मोतीलाल बाबू तारापदा को बोलते थे गाना गाओ। नहीं, अन्नपूर्णा रिक्वेस्ट करती थी, मोतीलाल बाबू वहां बैठ के सुनते थे। With his singing, the goddess of the sleeping, darkened homes on the bank would sink into a trance, and Annapurna's heart swelled with love and appreciation. Even the goddess of sleeping जो है, वो भी इतनी इम्प्रेस हो जाती थी इसके गाने से कि वो और ज्यादा अंधेरा कर देती घरों में, और ज्यादा शांति कर देती। ठीक है, जिससे कि सब कोई बिल्कुल कहीं किसी और ही दुनिया में चले जाएं। और अन्नपूर्णा को भी इतना प्यार आता था इस बच्चे पे, और इतने खुश भी होती थी कि कितना बढ़िया गाता है। But Charu would get up and shout tearfully and angrily, "Mother, I can't get to sleep with this noise." She found it quite unbearable to be sent to bed on her own while her parents sat and listened to Tarapada singing. और वो अपने रूम से ही चिल्लाती कि मुझे यहाँ अकेले भेज दिया, मुझे ये गाने, ये आवाज से बिल्कुल नींद नहीं आ रही। उसको अच्छा नहीं लगता था कि उसके मम्मी पापा ने उसको भेज दिया सोने, और यहाँ बैठ के अकेले तारापदा का सॉन्ग सुन रहा है। The natural fierceness of this fiery black-eyed girl fascinated तारापदा। तारापदा को इनफैक्ट इम्प्रेस करने लगी थी लड़की का ये जो नेचर था, ऐसा जिद सा, अजीब सा। तारापदा ने हमेशा से देखा था लोग उससे इम्प्रेस होकर के उससे प्यार ही जताते थे। ये पहली लड़की थी जो उससे इम्प्रेस तो थी, लेकिन प्यार नहीं जता रही थी, बल्कि गुस्सा होती थी, जेलस फील कर देती थी। सो उसको अच्छा लग रहा था। She was fascinated. He would tell her stories, sing her songs, play her the flute, make great efforts to win her round, but with no success at all. उसके लिए काफी चीजें करता है ना, स्टोरी सुनाता, सॉन्ग सुनाता, फ्लूट बजाता, बट वो तो नहीं मानती। Only in the afternoons, when he bathed in the swollen river, sporting his fair, pure body in a swimming display worthy of a young water god, only then could she not help being attracted just a little bit. बस जब वो दोपहर के टाइम नहाता था झरने में, रिवर में नहाता था, तो वो उसकी जो जब उसको उसको बॉडी दिखती थी कि इतना हैंडसम बॉडी है उसका, तब वो लड़की जरूर इम्प्रेस हो जाती थी इसको देख करके। जब नहाते हुए देखती थी, ही यूज टू लुक लाइक अ यंग वाटर गॉड, किसी देवता से, किसी गॉड से कम नहीं लगता था। शी वुड वॉच हिम देन, तब उसको देखती रहती थी वो। बट शी डिडंट रिवील हर इंटरेस्ट टू एनीवन, एंड born actress that she was, carried on knitting a woolen scarf with apparent indifference to Tarapada's water sports. पर वो किसी को दिखाती नहीं थी कि वो इसको देख रही है नहाते हुए। वो बॉर्न एक्ट्रेस थी, मतलब पास में बैठ करके कुछ निटिंग करती रहेगी स्कार्फ को, जैसे कि लोगों को लगे कि तो कुछ काम करी है, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि तारापदा को देख रही है। तारापदा टुक नो नोटिस ऑफ नंदीग्राम व्हेन दे पास्ड इट। वो इतना घुल मिल गया था चारू शशि और मोतीलाल बाबू एंड अन्नपूर्णा सब बातों में, कि वो याद ही नहीं रहा उसको कि बोट आगे निकल गई है, नंदीग्राम को पार भी कर दिए। उसको तो नंदीग्राम उतरना था। The large boat, sometimes with its sails up, sometimes towed, proceeded slowly on down rivers and tributaries, and the days of the passengers too flowed with a soft and easy pace through the peace and beauty of the scene. धीरे धीरे रिवर्स ट्रिब्यूटरी से होती हुई जो बोट थी वो आगे बढ़ रही थी। वो दिन बीतते गए, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो ये सारा नाव में ही हो रहा है ये सारी चीजें, और जो भी थे बोट में वो भी एंजॉय करते हुए सॉफ्टली आगे बढ़ रहे हैं नाव में। नो वन वॉज इन एनी काइंड ऑफ अ हरी, क्योंकि उनके पास तारापदा था, इतना अच्छा उनका एंटरटेनमेंट होता था, आराम से उनकी जर्नी बीत रही थी। लॉन्ग आफ्टरनून्स वर स्पेंट बाथिंग एंड ईटिंग, बीच बीच में रुकते भी थे, तो वो लंबे आफ्टरनून में उन लोग नहाते थे, खाते थे, फिर वापस नाव में चले जाते थे। And as soon as dusk fell, the boat was moored at a village ghat by trees buzzing with crickets and aglow with fireflies. जब शाम अंधेरा हो जाता था तो अंधेरे में नाव नहीं चलती थी, किसी गांव के घाट के पास में बोट को बांध दिया जाता था,
और फिर वहीं पे उन लोग रात गुजारते थे। तो ट्रीज बजिंग विथ क्रिकेट एंड अग्लो विथ फायर फ्लाइज मीन्स जुगनू और वो झिंगुर जो होते हैं वो आवाज कर रहे होते थे रात के टाइम। आफ्टर अबाउट 10 days of this, the boat arrived at Kathalia. 10 दिन की बोट जर्नी। After that, they arrived at Kathalia. Ponies and a palanquin. Palanquin is पालकी। पालकी होती है ना जिसमें लेडीज को बैठा करके और ले जाया जाता है। तो palanquin was there, ponies were there, घोड़े थे, were sent from the house to receive the zamindar. A guard of honor with bamboo lathis fired rounds of blanks raucously echoed by the village crows. तो जब वो जमींदार आए तो उसके ऑनर में बम्बू जो लाठी है उससे आवाज की गई, शोर मचाया गया, उनका वेलकम किया गया। Meanwhile, Tarapada slipped off the boat and quickly looked round the village, calling one villager Dada, another Khura, another Didi, another Masi. He established friendly relations with everyone in couple of hours. इधर तारापदा जैसे ही बोट से नीचे उतरा और सारे विलेजर से कुछ ना कुछ अपना रिश्ता बना दिया। किसी को दीदी, किसी को खूरा, किसी को दादा, किसी को मासी, बोल बोल करके सबको अपना बना लिया। ऐसे भी इसका इतना अच्छा नेचर था कि लोग ऐसे ही बहुत इंप्रेस हो जाते थे। बिकॉज ही हैड नो नॉर्मल टाइज, ही कुड गेट टू नो पीपल विथ अमेजिंग ईज एंड स्पीड। विद इन अ फ्यू डेज ही हैड वन ऑल हार्ट्स। कुछ दिनों में सबका दिल जीत गया, क्योंकि ये किसी से इसका खुद का बंधन तो था नहीं। तो जब आप किसी से मुंहों से नहीं जुड़े हो तो आप सबके हो, आप सबको बहुत इजीली पहचान जाते हो और उनसे मिक्स भी हो जाते हो। ही मिक्स विथ एवरीवन ऑन इक्वल टर्म, सबसे इक्वली वो मिक्स हो जाता था। He was unconventional yet able to adapt to any situation or work. किसी भी काम को दे दो वो कर लेगा। With boys he was a boy yet somehow separate and special. With older people he was not a boy yet not too precautious either. With herders he was a herder yet also a brahman. तो वो सबके साथ सब जैसे काम करता था, फिर भी उसकी अपनी एक अलग सेपरेट पर्सनालिटी होती थी। जैसे लड़कों के साथ वो लड़कों की तरह रहेगा पर आम लड़कों की तरह नहीं है, उसकी भी एक स्पेशलिटी थी। जब वो बड़े लोगों के साथ रहता था तो मैच्योर तरीके से बात करता था, पर फिर भी अपनी पहचान नहीं खोता था। एक उसमें जो जो यंग यूथ का जो नजरिया होता है वो रहता था। हर्ड्समैन के साथ घूमता था तो हर्डर जैसे घूमता था, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के साथ। ही जॉइंड इन विथ थिंग्स एज इफ यूज्ड टू देम ऑल हिज लाइफ। ऐसे ऐसे जी रहा था जैसे तो उसने यही जीवन शुरू से देखा है, यही जिया है। He would be chatting in the sweet shop. The sweet maker would say, "Could you mind the shop for a while? I shan't be long." Cool as a cucumber, Tarapada sat there keeping the flies off the sweetmeats with a leaf. Sweetmeats is sweet संदेश होता है ना, जो सौंदेश जो कोलकाता का और बंगाल का बहुत फेमस है, उसको स्वीटमीट्स बोलते हैं। तो जैसे कोई स्वीट मेकर था जो मिठाई की दुकान वाला था, वो उसको बोलता है कि थोड़ी देर मेरा शॉप संभाल लो, मैं अभी आता हूँ। तो वो आराम से कूल ऐसे क्यूकम्बर आराम से बैठ के शॉप को संभालता, मक्खियां उड़ाता रहता। ही कुड इवन मेक स्वीट्स हिमसेल्फ, खुद भी बना सकता था वो मिठाई। न्यू समथिंग ऑफ वीविंग एंड वॉज नॉट कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू टर्न अ पॉटर्स व्हील। सारे काम जानता था, वीविंग जानता, पॉटर्स व्हील मतलब वो पॉटरी का भी काम जानता, स्वीट्स खुद बना सकता था। तारापदा reigned over the whole village. सब में जैसे तो उसने अधिकार कर लिया था, सब उसको प्यार करने लगे थे। There was just one young girl whose hatred he simply could not overcome, and that was, we know, Charu Shashi. Perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave that he stayed on so long. देखो जनरली वो कहीं पे भी इतना दिन नहीं रुकता था, पर वहां वो रुका क्यों? शायद वो गर्ल इतना ज्यादा चाहती थी कि वो निकल जाए यहाँ से। ठीक है, वो सब उसको प्यार करते थे, उसको जेलेसी के कारण उसको अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है शायद यही उसकी पर्सनालिटी के कारण मतलब चारू शशि की पर्सनालिटी के कारण इम्प्रेस होकर के तारापदा रहने लग गया। बट चारू शशि नाउ प्रूव्ड हाउ हार्ड इट इज टू फैथम इवन अ जुवेनाइल फीमेल माइंड। जुवेनाइल इज जो एडल्ट नहीं हुई है, टीनेज फीमेल माइंड को भी समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है सिर्फ औरत को समझना मुश्किल है, वो औरत अगर यंग हो तो उसकी माइंड को भी समझना बहुत मुश्किल है। Bamun Thakurun's daughter Sonamani, Bamun Thakurun is a lady, her daughter's name is Sonamani, had been widowed at the age of 5. 5 साल की एज में वो विधवा हो गई थी, and she was Charu's playmate, बचपन की सहेली थी। She had been ill for a while and had not been able to go out to see her friend.
क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो चारू से मिलने नहीं आ सकी थी जब चारू घर पहुंची तो। When she was recovered and came to see her again, a rift between them came about for almost no reason. जब इतने दिनों बाद वो उसे मिलने गई तो सडनली एक तरीके की दूरी आ गई उन दोनों के बीच में, without any reason. Charu had been speaking at length about Tarapada. She hoped, by saying what a precious asset he was, to astonish and intrigue her friend. But when she discovered he was known to Sonamani, that he called Bamun Thakurun Masi, and that Sonamani called him Dada, when she heard that he had not only treated mother and daughter to kirtan tunes on his flute, but had at Sonamani's request made her a bamboo flute, that he had picked her fruits from high branches and flowers from thorny ones. तो जब चारू के घर आई सोनामणि तो चारू एक साथ सिर्फ तारापदा के बारे में बताने लगी, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास ऐसा एक लड़का है जो ये जानता है वो जानता है, यू नो, ऑल्दो वो उसको जेलस फील कराता है, उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन किसी और के सामने वो इस चीज का बोस्ट कर रही है कि वी हैव दैट बॉय, उसको सब कुछ आता है, ये भी आता है वो भी आता है। जब वो बता रही थी तो सडनली उसको पता चला कि सोनामणि उसको जानती है। सोनामणि बोली कि मेरी माँ को वो मासी बोलता है, मैं उसको दादा बोलती हूँ, और वो मेरे घर कई बार आता है, हम लोगों को कितने कीर्तन सुनाया हुआ है वो अपने फ्लूट से, और मेरी रिक्वेस्ट पे उसने एक बैम्बू का फ्लूट मेरे लिए बनाया भी था, मेरे लिए कितनी बार फ्रूट्स तोड़ के लाता है, हाई ब्रांचेस से फ्लावर्स लाता है, कांटेदार पेड़ से तोड़ के मेरे लिए फूल भी चुन के लाता है। When she heard all this, darts of fire stabbed her. जैसे तो कोई आग के गोले उसके ऊपर, मतलब जलन, इतना गुस्सा आया उसको, ऐसे लगा जैसे कोई ने आग से भरे हुए तीर उसके ऊपर छोड़ दिए। She had thought of Tarapada as their Tarapada, guarded closely so that ordinary people might glimpse him yet never be able to grasp him. उसका ऐसा लगता था तारापदा सिर्फ उनकी अमानत है, उनका एसेट है, बाकी सारे लोग सिर्फ उसको देख सकते हैं पर कोई और ज्यादा उसको ले नहीं सकता, उससे कुछ रिश्ता नहीं बना सकता है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। They would admire his beauty and talents from a distance, and चारू शशि's family would gain glory thereby. उसका ऐसे लगता था लोग खाली उसकी चीजों का, उसकी ब्यूटी का, उसके जो टैलेंट्स है उसको खाली दूर से देखें, पर वो सारी जो ग्लोरी है वो इनकी फैमिली को ही मिले कि भाई चारू शशि की फैमिली में ऐसा एक लड़का आया है। Why should Sonamani have such easy contact with this singular divinely favored Brahmin boy? सोनामणि क्यों उसको दादा बोलेगी, वो उसकी माँ को क्यों मासी बोलेगा, उन लोग इतना क्लोज क्यों है? दादा मीन्स ब्रदर। If Charu's family had not taken him in, had not looked after him so, how would Sonamani ever have seen him? Sonamani is Dada indeed. She burned all over at the thought. वो रात भर यही सोचती रही और एकदम जलन के मारे गुस्सा भी होती रही कि अगर मेरी फैमिली उसको लाती ही नहीं तो ये सोनामणि कहाँ से मिल पाती, इससे तारापदा से कहाँ से इसको मिलता है इसका भाई दादा, तो एहसान तो हमारा ही है, हम ही तो लेकर के आए हैं इस लड़के को। Why was the Charu who had tried to strike the boy down with arrows of hatred so anxious to claim sole rights over him? Understand this who will. नाउ ऑथर बोलता है कि वो चारू जिसने इस बॉय से हमेशा नफरत की, अचानक से वो इतनी क्यों एंग्शियस है कि बताने में कि सिर्फ ये मेरा ही है, सिर्फ हमारा ही है। ये सोचने वाली बात है, इसको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या चल रहा था उसके मन में। Later that day, Charu had a serious rift with Sonamani over another trivial matter. Trivial matter is a small matter. कोई unimportant matter पे झगड़ा हो गया उसका सोनामणि से। She marched into Tarapada's room, found his beloved flute, and callously jumped and stamped on it. तारापदा के रूम में आई गुस्से में, उसका सबसे प्यारा, मतलब तारापदा का सबसे प्यारा फ्लूट उठा करके उसके ऊपर कूदने लगी, तोड़ दी। She was still doing so when Tarapada came in. तारापदा अचानक से आया, बोला क्या कर रही हो? He was amazed by the image of destruction that the girl presented. Charu, why are you smashing my flute? He asked. I want to smash it. I'm going to smash it, shouted Charu with red eyes and flushed face, and stamping unnecessarily on the already smashed flute. She burst into loud sobs and ran from the room. गुस्से में वो बोल रही है मुझे तो इसको तोड़ना ही है, बस तोड़ना है, और कूदे जा रही, टूटी हुई बांसुरी को और तोड़े जा रही है, तोड़े जा रही है, और पूरा तोड़ करके फिर रोते हुए भाग गई रूम से। और तारा बधाई देख रहा है शौक होकर के इस लड़की को क्या हो गया। तारापेदा picked up the pieces, turned them this way and that, but it was useless. कैसे भी क्या लग सकता है क्या, इधर उधर देखा, बोला अरे ये तो पूरा बेकार हो गया।
to wreak destruction on his old, innocent flute was so absurd that he burst out laughing. चारुशशी intrigued him more every day. वो गुस्सा नहीं हुआ बल्कि उसको हंसी आ गई कि चारुशशी ने किया क्या, आई कूदी, कूद करके मेरे फ्लूट को तोड़ दिया और क्या कंडीशन की है मेरे फ्लूट की। उसको हंसी आ गई चारुशशी की इस हरकतों पे, और चारुशशी की ये हरकतें ही थी जो उसको और अल्योर करती थी, इंट्रीग करती थी और बांधने लगी थी उसकी तरफ, खींचने लगी थी उसकी तरफ. He was also intrigued by the English illustrated books in मोतीलाल बाबू's library. इंग्लिश बुक्स होती थी, इलस्ट्रेटेड बुक्स मतलब जिसमें कुछ पिक्चर्स भी होती है, उन बुक से ये बहुत फैसिनेटेड था. एक तो चारुशशी की हरकतों से फैसिनेटेड था, और दूसरा ये मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में इंग्लिश बुक्स थी, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी. इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, बस वो बुक्स देख करके इसको इच्छा होती थी कि मैं पढूं. Tarapada had considerable knowledge of the world, but he could not enter the world of these pictures at all. He tried to do so in his imagination, but found no satisfaction in this. Seeing his interest in these books, Motilal said one day, "Would you like to learn English?" तो तारापदा को पूरे वर्ल्ड की नॉलेज थी, पर वो कोशिश करता था इन पिक्चर्स को देख करके वो समझ सके कि लिखा हुआ क्या है, बट ऑब्वियसली नहीं समझ पाया. बहुत कोशिश करता था. लास्ट में एक दिन मोतीलाल ने देखा उसको तो पूछा कि क्या तुमको पसंद है, तुमको इंग्लिश सीखनी है क्या? यू विल अंडरस्टैंड दीज पिक्चर्स देन, तब आराम से समझ जाओगे पिक्चर्स के थ्रू कि क्या लिखा हुआ है, जब तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे इंग्लिश. I would like to learn it, he replied at once. Motilal Babu happily engaged the headmaster of the village secondary school, Ram Ratan Babu, to teach the boy English each evening. हर शाम को राम रतन बाबू, वहीं की सेकेंडरी स्कूल का मास्टर, आता था पढ़ाने. Now, Tarapada sat about learning English with great concentration and retention. It released him into hitherto inaccessible realm, unconnected with his formal world. उसको इतना पसंद था इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि उसको सीखना भी था, तो ऐसा लगता था जैसे उसको किसी और ही जगह, कोई और ही स्फीयर में, कोई और ही एरिया में लेकर के जा रहा है. जब वो पढ़ता था तो इस तरीके से डूब जाता था. The local people saw no more of him. At dusk, when he went to the empty riverside to pace swiftly up and down reciting his lessons, his boyish devotees mournfully watched from a distance. They dared not disturb his studies. वो इतना इंग्लिश पढ़ने में तल्लीन हो गया था कि वो बाहर ही नहीं निकलता, लोगों से बात ही नहीं करता था, अनकनेक्टेड था. सिर्फ रात के टाइम, शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता, रिवर साइड में वॉकिंग करता रहता और अपने लेसन्स को रिहर्स करता रहता इंग्लिश के. तब लोग उसको देखते थे, देखते भी दूर से थे और सोचते थे इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो पढ़ाई कर रहा है. पर वो इतना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था इंग्लिश सीखने में. चारू टू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम नाउ. अब चारू भी उसको इतना नहीं देखती थी. Formerly, Tarapada ate in the women's quarters under Annapurna's loving gaze, but because this could take a long time, he asked Motilal Babu to arrange for him to eat outside them. Annapurna was hurt by this and objected, but Motilal was so pleased by Tarapada's keenness to learn that he agreed to the new arrangement. जब वो खाना खाने जाता था, उसको जो औरतें जहाँ खाना बनाती थी वहां जाकर के खाना पड़ता था, इसमें उसको टाइम लगता था, तो उसने बोला मोतीलाल बाबू को, मेरा खाने का बंदोबस्त बाहर ही कर दीजिए ना, मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे इंग्लिश पढ़ना रहता है. अन्नपूर्णा को तो बहुत खराब लगा, लेकिन मोतीलाल बाबू वॉज सो हैप्पी कि कितना अच्छा लड़का है, पढ़ने में इसकी कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है. Charu now insisted that she too wanted to learn English. At first, her parents were amused by their wayward daughter's new idea, lovingly laughed at it. पहले तो उन लोग हंसे, अच्छा इंग्लिश पढ़नी है. But its absurdity was soon washed away by tears. But थोड़ी देर में देखे तो वो तो रोने लग गई. Doting parents that they were forced to give in, and she started to study alongside Tarapada with the same tutor. इतना जिद करी, रोने लग गई कि उसके माँ बाप को मानना ही पड़ा. अब वो राम रतन बाबू दोनों को साथ में पढ़ाते हैं. Study, however, was alien to her restless nature. She learned nothing herself, merely disrupted Tarapada's learning. उसको पढ़ना लिखने का शौक कुछ नहीं था चारुशशी को, और वो पढ़ती भी थी तो डिस्टर्ब ही करती थी तारापदा को. She fell far behind, couldn't learn anything by heart, but couldn't bear to be behind. इतनी पीछे रह गई थी समझने में. तारापदा आगे बढ़ जाता था ऑब्वियसली पढ़ करके, वो कुछ लर्न भी नहीं कर पाती थी, बट वो पीछे रह भी नहीं सकती, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ. इफ तारापदा overtook her and moved on a new lesson, she was furious and burst into tears. अब अगर तारापदा पढ़ करके नए चैप्टर में आ गया तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो रोने लग जाएगी.
When he finished an old book and bought a new one, she had to buy the new book too. उसको भी नया बुक चाहिए, भले ही उसका पुराना बुक खत्म नहीं हुआ, पर क्योंकि तारापदा ने ओल्ड बुक को खत्म करके नया बुक लिया है, मुझे भी न्यू बुक चाहिए. In his spare time, he would sit in his room learning and writing his lessons. The jealous girl couldn't stand this. She would secretly come and pour ink on his exercise book, steal his pen, even tear from the book the passage he had been set to learn. जब वो रात में पढ़ने के लिए बैठता था, अपने खाली टाइम में पढ़ने के लिए रूम में बैठता, तो इतनी जेलस थी, उसके कभी एक्सरसाइज बुक में पेन गिरा देगी, जो पार्ट वो पढ़ने वाला है उसी को फाड़ फूड़ करके निकल जाती थी. तारापदा bore most of this with amusement. If she went too far, he slapped her, but he was quite unable to control her. वो खुश भी होता था, उसको अच्छा लगता था ये सारी हरकतें उसकी. कभी कभी बहुत ज्यादा हरकतें करती थी तो गुस्से में थप्पड़ भी लगा देता था, लेकिन कंट्रोल तो नहीं कर पाया चारू शशि को. चारू शशि फिर भी ऐसी हरकतें करती ही थी. A chance occurrence saved him. Chance occurrence means कुछ coincidence, कुछ ऐसा coincidence हुआ which saved him. One day, truly annoyed, he tore up his ink-spilled exercise book and sat gloomily. Charu came to the door and prepared herself for a beating, but nothing happened. Tarapada went on sitting in silence. The girl went in and out of the room. Several times she came so close that Tarapada could, if he had wished, easily have thocked her on the back. But he did not do that and remained solemn. तो एक दिन ऐसे ही वो गुस्सा हो गया था, उसने चारू ने पूरा इंक फेंक दिया था एक्सरसाइज बुक में, कि उसको गुस्सा आकर के उसने खुद ही ने अपनी एक्सरसाइज बुक फाड़ के फेंक दी और फिर दुखी होके बैठा था. अब चारू आई, चारू को पता था ये तो मुझे पीटेगा, मारेगा. वो बेचारी रेडी थी मार खाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस दिन. तारापदा चुपचाप उदास होकर के एक जगह बैठा रहा. चारू शशि आगे आ रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पास में आके बैठ गई. इतने पास बैठी थी कि तारापदा उसको आराम से मार सकता था बैक पे, पर उसने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा. द गर्ल वॉज इन अ क्वांडरी. क्वांडरी मीन्स परप्लेक्स्ड. तो उसको, लड़की जो थी वो कंफ्यूज थी, परप्लेक्स थी, आज क्या बात है, पजल थी, क्यों नहीं कुछ कर रहा है, कुछ मार क्यों नहीं रहा मुझे. हाउ टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस वॉज समथिंग शी हैड नेवर लर्न. वो तो सीखी नहीं थी कि माफी कैसे मांगते हैं. येट शी वॉज एक्सट्रीमली एंक्शियस फॉर फॉरगिवनेस. पर वो चाहती थी कि ये माफ कर दे. माफी मांगना नहीं आता, पर चाहती है कि माफ कर दे. Finally, seeing no other way, she took a piece of the torn exercise book, sat down text to Tarapada and wrote in large round letters, I will never pour ink on your exercise book again. At last, ये चीज उसने पेज में बड़ा बड़ा लिख करके दिया कि भाई मैं कभी इंक नहीं डालूंगी. She then made elaborate efforts to attract his attention. At this, Tarapada could not contain himself anymore and he burst out laughing. At last, जब वो तारापदा ये हरकतें देख लिया उसकी, तो at last वो हंसने लग गया. The girl dashed from the room, overcome with shame and anger. अब उसको गुस्सा भी आ रहा है और शर्म भी आ रही है अपनी इस हरकतों पे. गुस्सा क्यों आ रहा है कि ये हंस दिया, और शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे ऐसे हरकतें की तब ये हंसा. Only if she had been able to expunge from all time the paper on which she had humbled herself would her fury have been eased. Expunge means remove. तो वो सोचती है काश मैं पूरी तरीके से रिमूव कर दूं जो मैंने लिखा था पेपर में कि मैं अब कभी नहीं इंक डालूंगी, काश मैं रिमूव कर दूं, ये बात ही याद ही नहीं रहे किसी को. During this period, Sonamani had once or twice, with her heart in her mouth, lurked outside the lesson room. She was close to her friend Charushashi in most matters, but with regard to Tarapada, she feared and distrusted her. तो इस बीच में सोनामणि एक दो बार आई थी, उसको मिलने का मन होता था तारापदा से, भाई था उसका, मैंने भाई मानी थी उसको. वो अपने फ्रेंड से, चारू शशि से भी बहुत क्लोज थी, लेकिन इस पर्टिकुलर बात में, तारापदा से मिलने के मामले में वो उसको ट्रस्ट नहीं करती थी. पता था उसको चारू शशि गुस्सा हो जाएगी. At moments when Charu was in the women's quarters, she would stand timidly outside Tarapada's door. He would look up from his book and say tenderly, "What is it, Sona? What's up? How is Masi?" तो कभी कभी चारू जब वो रहती थी जहाँ पे सारी औरतें रहती है किचन और में, तब ये जाती थी सोना, तारापदा के गेट के आगे खड़ी रहती थी. तारापदा देख करके पूछता, कैसी है मासी सोना. सोनामणि would say, "You haven't been to see us for a long time. Mother wishes you would sometime. She has backache, so she can't come to you." कि मासी, मतलब मेरी माँ जो है उसके बैक एक है, उसके कमर में दर्द है, वो तो आ नहीं सकती, पर तुम भी तो कितने दिन से हमारे यहाँ आए नहीं, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है. चारू वुड परहैप्स नाउ अपीयर. उसी टाइम चारू आ जाती. सोनामणि वॉज फ्लस्टर्ड. शी फेल्ट लाइक अ थीफ. फ्लस्टर्ड मतलब कंफ्यूज हो जाती थी, उसका ऐसा लगता था अरे मैं क्या करूं.
चारू वुड स्क्राउल एंड श्रीक एट हर, गुस्सा होकर ये चिल्लाती, वेल सुना, कमिंग टू डिस्टर्ब आवर स्टडीज, आई टेल माई फादर, मैं अपने फादर से कंप्लेन कर दूंगी, हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने आ गई है। एज इफ शी हरसेल्फ वॉज तारापदास गार्जियन, जैसे तो वो खुद तारापदा की गार्जियन है, whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed. But God was not unaware of what her actual motive was in coming to Tarapada's room at this odd time, and Tarapada also knew it well. Now इस तरीके से वो बिहेव करती जैसे कि वो तारापदा की गार्जियन है, और उसका यही एक एम है, उसका यही एक मकसद है कि दिन रात ये देखे कि तारापदा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। पर ये अचानक से इस टाइम में रूम में क्यों आ जाती थी, ये कोई नहीं समझ सकता था, बट थोड़ा थोड़ा समझ रहा था तारापदा, थोड़ा थोड़ा नहीं, ही न्यू इट वेल, अच्छे से समझता था क्यों आ जाती है चारू शशि मेरे पास बीच बीच में। पुअर सोनामणि फम्बल्ड फॉर फॉल्स एक्सप्लेनेशंस, बेचारी कोशिश करती समझाने का कि ये झूठे मूठे कुछ भी किए, अरे मैं इसलिए आई थी, इसलिए आई थी। When Charu venomously called her a liar, she withdrew, sick at heart, defeated. The kindly Tarapada would call her and say, Suna, I'll come to your house this evening. Charu hissed back like a snake. How can you go? What about your lessons? I'll tell the teacher. वो इतना जोर से डांटती और इतनी बुरी तरीके से डांटती सोनामणि को कि सोनामणि को ऑब्वियसली बुरा लगता। तारापदा उसको बोलता सोनामणि को कि तुम अभी जाओ, और ना मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मम्मी से भी मिलने आऊंगा इवनिंग में। तब चारू और जोर से चिल्लाती, तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे लेसन्स कौन याद करेगा, मैं सारा बोल दूंगी टीचर को, शिकायत कर दूंगी। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर टिल हियर, and we'll continue the story, and we will end the story in the next part, that will be the third part of this series. Here is a playlist of all the chapters from the book Prism and Rhapsody, and here you will find all the parts of this chapter too. So I'll meet you soon and we'll complete this chapter. Till then, keep practicing, keep preparing, and if you haven't subscribed to my channel, subscribe. Bye bye. Jai Hind.